امسال ایئرپورٹ پہنچی تو 10 بج رہے تھے۔ بورڈنگ گیٹ کھل گئے تھے اور وہ اپنے والدین سے مل کر اندر جا چکی تھی۔ امسال کے والدین باہر ہی موجود تھے جب بہت سی گاڑیاں آ کر رکی تھی۔ سب سے آگے موجود بلیک لینڈ کروزر سے ابتہاج باہر نکلا تھا۔ ابتہاج مکمل سیکیورٹی کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ رہا تھا اور اس کے اتنے تعلقات تھے کہ اسے اندر جانے دیا گیا تھا۔ کچھ وقت کے لیے فلائٹس بھی لیٹ ہو گئی تھی۔ امسال کے والدین ابتہاج کو دیکھ کر اپنی جگہ الگ پریشان ہو چکے تھے۔ ابتہاج اندر کھڑا یہاں وہاں نظریں دوڑا رہا تھا اور امسال زیادہ دیر اس کی عقابی نظروں سے محفوظ نہ رہ سکی تھی۔ امسال اپنا بیگ گھسیٹتے ہوئے وزن کروانے والے کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہی تھی جب ابتہاج اس تک پہنچ چکا تھا۔ "What the hell is wrong with you؟ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو، ہاں؟" ابتہاج نے امسال کو کوہنی سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا تھا اور غصے سے دھاڑا تھا۔ آس پاس موجود لوگ اپنا کام چھوڑے ان کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ امسال ابتہاج کے اس انداز پہ سہم گئی تھی۔ امسال نے خود کو فوراً ہی سنبھالا تھا اور بغیر جواب دیے اپنا ہاتھ چھڑوا کے آگے بڑھ گئی تھی۔ "چلو تم میرے ساتھ، بتاتا ہوں تمہیں کہ میں کیا چیز ہوں۔" ابتہاج نے امسال کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس بار گرفت بہت مضبوط تھی، ساتھ ہی امسال کو کھینچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ "چھوڑیں مجھے۔" امسال اپنا ہاتھ ابتہاج کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کی مدد کو آگے نہ بڑھ رہا تھا۔ یہی تو ہمارے معاشرے کی بے رحمی اور برائی ہے کہ غلط کے خلاف آواز اٹھانے اور اسے روکنے کے بجائے سب چپ چاپ تماشا دیکھتے ہیں یا پھر ویڈیو بنانے میں لگ جاتے ہیں اور ظلم طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حمدان صاحب اور زباریہ بیگم دونوں ابتہاج کی سمت بڑھے تھے لیکن ابتہاج کے گارڈز ان کے سامنے کسی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے تھے اور انہیں وہاں سے ہلنے تک نہ دیا۔ ابتہاج نے امسال کو زبردستی گاڑی میں تقریباً پھینکا تھا اور وہاں سے نکل گیا تھا اور ساتھ ہی پیچھے اس کے گارڈز بھی تھے۔ کتنی طاقت تھی سمیر زادے کے پاس کہ کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا۔ ہمیشہ سے یہی تو ہوتا آیا ہے۔ حمدان صاحب اور زباریہ بیگم کا تو حال برا ہو گیا تھا۔ ایک نامحرم ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی لاڈلی بیٹی کو لیے چلتا بنا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پائے تھے۔ زباریہ بیگم تو رونا شروع ہو گئی تھی۔ ہزار قسم کے وسوسے ان کے دماغ میں جنم لے رہے تھے جس سے انہیں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ حمدان صاحب نے انہیں سنبھالا تھا اور اپنے ساتھ لیے گاڑی کی طرف بڑھے تھے تاکہ ابتہاج کا پیچھا کر سکیں۔ "یہ کیا پاگل پن ہے؟ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟" امسال اپنی جگہ مچل رہی تھی جبکہ ابتہاج راکٹ کی سپیڈ سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ "چپ کر کے بیٹھو، بالکل چپ۔" ابتہاج کی داڑھ امسال کے کانوں میں گونجی تھی جسے سن کر اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑی تھی۔ ابتہاج کی آنکھیں لال تھیں اور غصے کے باعث شعلے برسا رہی تھیں۔ "روکیں گاڑی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، روکیں۔" امسال چیخ رہی تھی لیکن ابتہاج بہرا بنا بیٹھا تھا۔ "کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟" گاڑی کسی ویران رستے پر رواں دواں تھی کیونکہ امسال نہ جانتی تھی۔ اب اسے ابتہاج سے خوف آ رہا تھا، نہ جانے وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ "بہت شوق ہے نا تمہیں بھاگنے کا، اب میں بتاؤں گا تمہیں کہ اس کا کیا انجام ہے۔ کہا تھا نا میں نے کہ میرے غصے کو ہوا مت دینا، تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔" ابتہاج اپنے فارم ہاؤس کے پارکنگ ایریا میں گاڑی روکی تھی اور غصے میں دھاڑتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا تھا اور ساتھ ہی امسال کی طرف کا دروازہ کھولا تھا، جبکہ امسال تو فارم ہاؤس دیکھ کر ہی چکرا گئی تھی۔ ابتہاج بہت مضبوط تھا اور امسال اس کے کثرتی جسم کے آگے بہت نازک سی تھی، وہ بھلا کہاں مقابلہ کر سکتی تھی ابتہاج کا۔ ابتہاج امسال کو گاڑی سے نیچے اتار کے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ "چھوڑے میرا ہاتھ۔" امسال بھرپور کوشش کر رہی تھی خود کو آگے سے بڑھنے سے روکنے کو۔ ابتہاج امسال کو ایک کمرے میں لایا تھا جو کہ بہت خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز بہت قیمتی معلوم ہوتی تھی۔ ابتہاج نے امسال کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا تھا جس کی وجہ سے وہ صوفے پہ گری تھی۔ ابتہاج نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ کمرے میں صرف ایک ہی کھڑکی تھی اور وہ بھی مکمل طور پہ بند تھی۔ "جانے دیں مجھے پلیز۔" ابتہاج کے دروازہ بند کرنے سے امسال کو خوف نے آ گھیرا تھا، ساتھ ہی برے وسوسے جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ "بولا تھا نا پیار سے مان جاؤ شادی کے لیے۔" ابتہاج کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا، اس کے تیور امسال کو ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ "نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، کون سی زبان میں بولوں؟" امسال اب بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ "ٹھیک ہے، ابھی کر کے دکھاتا ہوں میں نکاح تم سے۔" ابتہاج اپنی بات مکمل کر کے اپنی جیب سے موبائل نکالا تھا اور معراج کو کال کی تھی۔
दूसरी जानिब इत्तेहाज की बात सुनकर अमसाल का खून खुश्क हो गया था। मैं नहीं करूंगी निकाह आपसे, चाहे आप कुछ भी कर लें। अमसाल किसी भी सूरत इत्तेहाज से शादी करने पर राजी ना हो सकती थी। इत्तेहाज ने अमसाल की बात का कोई जवाब ना दिया और मेराज को काजी और गवाह के साथ आने का कह रहा था, जबकि मेराज उसे समझा रहा था कि ये सब करना ठीक नहीं है। इत्तेहाज का गुस्सा बहुत खतरनाक था, वो गुस्से में आपस से बाहर हो जाता था और इस वक्त भी वो अपने बात पे डटा हुआ था। इत्तेहाज ऐसे हरगिज भी काबू में ना आता, इसलिए मेराज फार्म हाउस आने के लिए निकल गया था। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई गुस्से में कुछ भी गलत करे। नफरत करती हूँ मैं आपसे, शदीद नफरत। बोलते हुए अमसाल के आंसू लड़ी की सूरत बहना शुरू हो गए थे। इत्तेहाज कॉल कट करके अमसाल के पास आया था। हाँ चलो नफरत ही कर लो, मोहब्बत में बदल दूंगा मैं ये नफरत। इत्तेहाज इत्मीनान से बोला था। जस्ट लेट मी गो, अमसाल चीखी थी। नो वे जाने मन, अभी तो लाया हूँ। इत्तेहाज बिल्कुल चिल था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस हसीन चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा होगा। कोई मुझसे पूछे कि आप कैसे हैं, अमसाल रोते हुए बोली थी, लहजा बहुत थका हुआ था। देखो मेरी बात सुनो, आई एम नॉट अ बैड गाय। तुम मेरा जुनून बन चुकी हो, दीवाना बना दिया है तुमने मुझे अपना, और हासिल तो मैं तुम्हें करके रहूंगा। इत्तेहाज अमसाल के बिल्कुल सामने बैठा था। लेकिन मुझे आपका साथ कबूल नहीं, कहकर अमसाल भागी थी और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे पे बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ था, जो कि सिर्फ मेराज, हैदर और इत्तेहाज ही खोल सकते थे। अमसाल ने इतना ध्यान ना दिया था और दरवाजे का हैंडल घुमा रही थी। ये फार्म हाउस इन तीनों का था और इसके बारे में किसी को नहीं पता था सिवाय जहांगीर साहब के। आखिर को वो भी उनके बाप थे। कोई फायदा नहीं है मेरी जान, नहीं खुलेगा ये तुमसे। क्यों खुद को हलकान कर रही हो, वापस आओ यहाँ, मेरे बात मुकम्मल नहीं हुई है अभी। इत्तेहाज सुकून से बैठा था क्योंकि अमसाल यहाँ से भाग नहीं सकती थी। कहीं का ना छोड़ा, आपने मुझे बर्बाद करके रख दिया। आखिर मेरी गलती क्या थी, मेरी जिंदगी को मेरे लिए इम्तिहान बना दिया है आपने। अमसाल ने बहुत कोशिश की लेकिन लॉक ना खुला तो वो थक कर वहीं नीचे बैठती चली गई। ये बात कहते हुए अमसाल के लहजे में जमाने भर की बेबसी और आंखों में बेतहाशा आंसू थे। देखो मैं तुम्हारे लिए हरगिज भी मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता। यहाँ निकाह करवाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, काजी साहब आते ही होंगे। इत्तेहाज अमसाल की तरफ आया था और उसे पकड़ के खड़ा किया था। हाथ मत लगाया करें मुझे आप, और मैं निकाह नहीं करूंगी, चाहे फिर आप मेरी जान ही क्यों न ले लें। अमसाल गुस्से और बेबसी की शिद्दत से चिल्लाई थी। इतना चीख क्यों रही हो, बहरा नहीं हूं मैं, और नहीं तुम्हें क्यों मारूंगा मैं जान से। इत्तेहाज ने इतनी बात कहकर अमसाल का बायां हाथ पकड़ा था और उसकी तीसरी उंगली में मौजूद अंगूठी उतार दी थी, जो कि अभी तक अमसाल के हाथ की जीनत बनी हुई थी। इत्तेहाज की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अमसाल की मजम्मत करने के बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ था। मुझे मेरी अंगूठी वापस दें। अमसाल इत्तेहाज के हाथ से अंगूठी वापस लेने की कोशिश करते हुए बोली थी। अब मेरी बात गौर से सुनो, 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें, मान जाओ शादी के लिए, वरना फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इत्तेहाज ने हल्के मगर सख्त लहजे में अपनी बात कही थी। मुझे नहीं करनी आपसे शादी, 2 दिन बाद भी यही जवाब होगा मेरा। अमसाल इस वक्त किसी आतिशफिशां से कम न लग रही थी। ठीक है, मर्जी तुम्हारी, तुमने बहुत हल्के में लिया हुआ है मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो कुछ कर नहीं सकता मैं तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों के साथ। इतनी बात अपने इस बाकी दिमाग में बिठा लो कि तुम्हें हासिल करने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इत्तेहाज ने अपनी लाल अंगारा आंखें अमसाल की वहशत ज़दा पानी से भरी आंखों में डाली थी। इस बात से क्या मतलब है आपका, अमसाल खौफ से हकलाई थी। चलो घर छोड़ दूं, सास ससुर परेशान हो रहे होंगे मेरे, अभी आगे और भी तो परेशानियां देखनी है इन्हें। इत्तेहाज ने दरवाजा खोला था और बाहर निकल गया था। अमसाल दोबारा वहीं फर्श पर बैठे हाथों में चेहरा दिए फूट फूट कर रो दी थी। क्या छोटे मीर इतना गुस्सा। इत्तेहाज जो कि बाहर आया था, उसी वक्त मेराज भी अपनी गाड़ी से बाहर आया था। इत्तेहाज मेराज की तरफ बढ़ा था। बड़े मीर उसकी हरकतें भी तो देखो, इतनी हिम्मत उसके कि मुल्क छोड़कर जा रही थी वो। इत्तेहाज की रगों में एक बार फिर गुस्से की लहर दौड़ी थी और इसने गाड़ी के टायर पर लात मारी थी। ओ हेलो भाई, मेरी गाड़ी है। अच्छा, काम डाउन, कहीं नहीं गई ना वो। चलो अब घर छोड़ कर आओ उसे, इज्जत है वो हमारे घर की, किसी ने देख लिया तो मुश्किल खड़ी कर देंगे। मिराज ने इत्तेहाज के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे समझाया था।
इब्तिहाज ने एक लंबा सांस खींचा था और अपने दिमाग को ठंडा किया था। शाबाश मेरा शेर, मेराज ने इब्तिहाज की कमर पे थपकी दी थी। इब्तिहाज जब वापस अंदर आया उस वक्त भी अमसाल रो रही थी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस वक्त अमसाल का शिद्दत से दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें दफन हो जाए। चलो उठो, घर छोड़ दूं तुम्हें और अब इधर उधर भागने की जुर्रत ना करना। इब्तिहाज ने अमसाल को पकड़ के खड़ा किया था। हाथ मत लगाए मुझे, नफरत है मुझे आपसे, आपके लम्स से। अमसाल के लहजे और आंखों दोनों में इब्तिहाज के लिए सिर्फ नफरत थी। अच्छा करती रहो नफरत, लेकिन गाड़ी में तो चलकर बैठो, उठाकर ले जाऊं। इब्तिहाज अपनी हंसी दबाते हुए बोला, नहीं जाना मुझे आपके साथ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अमसाल कह कर बाहर की जाने बढ़ गई थी और उसके पीछे ही इब्तिहाज भी। ज्यादा तुरम खान बनने की जरूरत नहीं है, वरना तुम जानती हो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। सीधे तरीके से बैठोगी या फिर मैं उंगली टेढ़ी करूं। इत्तेहाज अमसाल को सख्त नजरों से घूरते हुए बोला, जिस पे वो सहम कर चुपचाप जाके बैठ गई। क्यों करना चाहते हैं मुझसे शादी? मैं तो आपकी क्लास, आपके स्टेटस की नहीं हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपकी रातें रंगीन करने का सामान हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती। गाड़ी में फैली खामोशी को अमसाल की आवाज ने तोड़ा था। अपने लिए इस किस्म के अल्फाज उसने किस दिल से कहे थे ये सिर्फ वही जानती थी। क्या कहा तुमने? रातें रंगीन? आर यू क्रेजी? उल्टे हाथ कर लगाऊं मैं तुम्हें? इब्तिहाज ने झटके से गाड़ी रोकी थी। अगर अमसाल ने सीट बेल्ट ना लगाया होता तो यकीनन उसका सर डैशबोर्ड से बुरी तरह टकराता। इब्तिहाज गुस्से में फुनकारा था, साथ ही अपना हाथ स्टेयरिंग पे मारा था। ठीक ही कह रही हूँ, वरना आप जैसे रईस अमीरजादे मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की को क्यों पसंद करने लगे भला? इब्तिहाज के रद्द अमल से पहले तो अमसाल डर गई थी, लेकिन फिर खुद को फौरन संभाला था। चुप कर जाओ अमसाल, वरना मैं कुछ कर दूंगा। अगर मेरा ताल्लुक एक रईस घराने से है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हवस का पुजारी हूँ। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। मुझे अगर ऐसा कोई गिरा हुआ घटिया फेल करना होता तो अभी फार्म हाउस पे ही कर देता, या फिर तुम्हें एक दिन के लिए गायब करवा कर कहीं भी ले जाता। कौन रोकने वाला था मुझे? लेकिन नहीं, मैं इस किस्म की गिरी हुई हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। इश्क करता हूँ मैं तुमसे, मेरी पाक मोहब्बत को इस किस्म की गंदी गाली मत दो। मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ और बना कर रहूंगा। इब्तिहाज के लहजे से जाहिर हो रहा था कि अमसाल की इस बात से उसे कितनी तकलीफ हुई थी। इब्तिहाज को अमसाल की सोच पे अफसोस हुआ था। आज तो ये बात कर दी, लेकिन आज के बाद अगर इस किस्म की बात अपनी जुबान पे लाई तो तुम जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। यहाँ तक कि अगर ऐसा दोबारा सोचा भी तो तुमने ये जान ले लूंगा। इत्तेहाज ने अमसाल को झटके से अपनी तरफ खींचा था, जिससे वो उसके बहुत नजदीक आ गई थी, और फिर अपनी बात कहकर झटके से ही छोड़ा था, जिसकी वजह से अमसाल दरवाजे से टकराई थी। लेकिन मैं नहीं बनना चाहती आपकी इज्जत, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? रो रो कर अमसाल की आवाज अब भारी हो चुकी थी। बता चुका हूँ तुम्हें, मैं अपनी बातें बार बार दोहराने का आदी नहीं हूँ। इत्तेहाज ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी थी। छोड़ दे मेरा पीछा प्लीज, हम इज्जतदार शरीफ लोग हैं। खुदारा मेरे वालिदैन का सर नीचे ना झुकाएं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अमसाल ने अपनी अना को पसे-पुश डालकर इत्तेहाज के आगे हाथ जोड़ दिए थे। अमसाल को रोते हुए और ऐसे हाथ जोड़े देखकर इत्तेहाज को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो ये सब हरगिज भी नहीं चाहता था, लेकिन वो भी मजबूर था। अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर था, अपने दिल के हाथों मजबूर था, जो हर पल बस अमसाल के साथ की चाह करता था। मैं भी बहुत खानदानी शरीफजादा हूँ, तुम आराम से मान नहीं रही, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है मुझे। 2 दिन है तुम्हारे पास, अपना जवाब बदल लो और रोना बिल्कुल भी नहीं। जाओ, अब घर आ गया है तुम्हारा। इत्तेहाद जानबूझ कर अमसाल को नहीं देख रहा था, इसने अपनी बात सामने देखते हुए सख्त लहजे में कही थी। अमसाल खामोशी से उतर कर चली गई थी और इत्तेहाद की निगाहों ने उस वक्त तक उसका पीछा किया था जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। अमसाल जब घर में दाखिल हुई तो रात के 1 बज रहे थे। जुबारिया बेगम का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हमदान साहब अपनी जगह अलग परेशान थे, क्योंकि पीछा करने में बहुत देर हो गई थी। मेरी बच्ची, मेरी जान। अमसाल पे नजर पड़ते ही जुबारिया बेगम उस तक गई थी और उसे अपने सीने से लगाया था। अमसाल का चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। कहाँ लेकर गया था वो तुम्हें? क्या किया है उसने? कुछ तो बोलो मेरी जान, चुप क्यों हो तुम? जुबारिया बेगम को बहुत से खदशात लाहक थे और अमसाल की खामोशी इन्हें मजीद रुला रही थी। कुछ भी नहीं किया है उसने मामा, आप परेशान ना हो। अमसाल ने जुबारिया बेगम के आंसू साफ करते हुए इन्हें यकीन दिलाया और कुछ देर बाद अपने कमरे में आ गई।
कमरे ही में आते ही अमसाल अपना जब्त खो बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इब्तिहाज की तमाम बातें उसके दिमाग पे हथौड़े की तरह लग रही थीं। कुछ देर के बाद अमसाल वॉशरूम गई और वजू करके अपने रब के हुजूर पेश हो गई। एक यही जरिया था मदद तलब करने का, और बेशक उस रब से ज्यादा कोई भी ताकतवर नहीं। अमसाल को घर छोड़कर इब्तिहाज दोबारा फार्म हाउस चला गया था। दोनों भाई इस वक्त एक कमरे में मौजूद थे। इब्तिहाज हाथों में अपना सर दिए बैठे बेड पर बैठा था और उसके बराबर में मेराज बैठा था। दोनों ही परेशान थे। इब्तिहाज हर कीमत पे अमसाल को हासिल करना चाहता था। अब असल मरहला था जहांगीर साहब और जन्नत बेगम को इस बारे में बताना। इब्तिहाज को ये डर था कि अगर जहांगीर साहब को ये पता चल गया कि इब्तिहाज अमसाल से जबरदस्ती शादी कर रहा है तो कभी भी ये शादी न होने देंगे। बड़े मीर आज वो बहुत रो रही थी। इब्तिहाज की आंखों के सामने अब भी अमसाल का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था और वो बहुत दुखी था। वो शरीफ लड़की है छोटे मीर, ये तो होगा। मेराज खुद भी परेशान था। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इसकी आंख में आंसू। जब उसे रोते हुए देखता हूँ तो दिल करता है उसके कीमती आंसू समेट लूं और उसके रोने की हर वजह को मिटा दूं। लेकिन बड़े मीर, उसके रोने की वजह तो मैं खुद हूँ। इब्तिहाज के लहजे में अमसाल के लिए फिक्र थी और अपने किए की नदामत। हौसला रखो छोटे मीर, अब ये राह चुनी है तो बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। मेराज अपने छोटे भाई को गौर से देख रहा था और यही सोच रहा था कि वो किसी लड़की के पीछे इतना पागल भी हो सकता है। वो इब्तिहाज जो लड़कियों में खड़ूस बिजनेसमैन के नाम से मशहूर है, कभी किसी लड़की को रोते देख इस कदर परेशान होगा। एक बार वो मेरी हो जाए बस, उसके बाद उसकी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा और जो कुछ अभी कर रहा हूँ उसका खुमियाजा भी भरूंगा। इब्तिहाज के बोलने पर मेराज ने अपने भाई की खुशियों की दुआ की थी। इब्तिहाज ने अमसाल को 2 दिन का वक्त दिया था और ये 2 दिन पर लगाकर गुजर गए थे। अमसाल ने अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया था जो कुछ इब्तिहाज ने उससे कहा था। हमदान साहब ने अमसाल को मना कर दिया था कि वो किसी सूरत भी शादी के लिए हाँ न करे और अमसाल ने खुद भी यही सोचा हुआ था। दरवाजे पे घंटी बज रही थी। अमान जो अमसाल का छोटा भाई था दरवाजा खोलने गया था। मीर इब्तिहाज जहांगीर 2 दिन बाद अपना जवाब लेने आया था और इस वक्त अमसाल के घर के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। कौन आया है अमान? अमसाल की आवाज आई थी जिसे सुनकर इब्तिहाज के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। अरे साले साहब, बताएं अपनी बहन को कि आपके फ्यूचर बहनों ही आए हैं। इब्तिहाज अमान से मुखातिब था। इतने में अमसाल खुद ही आ गई थी और इसके पीछे जुबारिया बेगम दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। जुबारिया बेगम को देखकर इब्तिहाज अदब से खड़ा हो गया था और ये उसकी अच्छी तरबियत का सबूत था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इब्तिहाज को देखते ही अमसाल का मूड खराब हो गया था। जी मैं कैसी हो जान? इब्तिहाज अपनी दांतों की नुमाइश करते हुए बोला। मर रही हूँ बहुत जल्द। इब्तिहाज की जान कहने पे अमसाल उसे घूर रही थी और इब्तिहाज को अमसाल की अदा बहुत पसंद आई थी। ओ अच्छा, तो फिर सोच के मरना कि तुम्हारे बाद तुम्हारी फैमिली कितनी मुसीबत में आ सकती है। इत्तेहाज के जुमले में धमकी छुपी हुई थी। धमकियां देने के अलावा भी कुछ आता ही है या नहीं? बंदा सुकून से मर भी नहीं सकता यहाँ पे। अमसाल ने दिल में सोचा था और अपनी आंखें घुमाई थी। आपको मुझसे मतलब होना चाहिए, मेरे घर वालों से नहीं। इत्तेहाज की धमकी ने अपना काम किया था जिसका सबूत अमसाल के लहजे में मौजूद घबराहट थी। क्यों? मुझे मेरे ससुराल से मतलब नहीं होगा क्या? कैसी हैं आंटी आप? इत्तेहाज पहले अमसाल और फिर जुबारिया बेगम से मुखातिब हुआ था। जिन लोगों के पीछे तुम जैसे लोग पड़ जाएं वो भला कैसे ठीक हो सकते हैं? चले जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। जुबारिया बेगम सख्ती से बोली थी। आंटी, आपकी बेटी को भी बताया था। चले आपको भी बता देता हूँ कि अच्छा इंसान हूँ मैं। वो तो बस ये मेरी बात नहीं मान रही, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है मुझे। इज्जत के साथ इसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ, अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। अब आप ही बताएं इसमें क्या गलत है? इत्तेहाज का अंदाज बहुत धीमा और नर्म था। मेरी बेटी का रिश्ता पहले ही तय हो चुका है, जुबारिया बेगम ने बावर कराया। वो तो मैंने खत्म कर दिया ना। अब तो अंगूठी भी कहीं पड़ी जल रही होगी। जहां तक बात है उस लड़के की, तो जहां भी मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ वहीं उस अरहान नामी शख्स को गायब भी करवा सकता हूँ। इब्तिहाज बहुत मजे लेते हुए बोला था। तुम क्यों ये सब कर रहे हो? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बना रहे हो? न मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है ना ही हम। जुबारिया बेगम ने फौरन जवाब दिया था। पसंद तो क्या, आपकी बेटी मोहब्बत बल्कि इश्क करेगी मुझसे। आप एक बार शादी तो होने दें। और वैसे भी आपने सुना तो होगा कि निकाह के 2 बोलों में बहुत ताकत होती है। खैर, 2 दिन गुजर चुके हैं, क्या सोचा आपने मैडम? इतिहास के अंदाज में अपनी मोहब्बत का यकीन छलक रहा था।
क्या लेंगे आप यहाँ से जाने का? अमसाल ने जवाब के बजाय सवाल किया था। तुमसे कुछ पूछा है मैंने, क्या सोचा फिर? जबरदस्ती निकाह करना पसंद करोगी या फिर मान रही हो जबरदस्ती ही सही? इब्तिहाज ने अपनी बात दोहराई थी जो वो हर किसी के सामने ना दोहराता था। मेरा जवाब आज भी वही है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। अमसाल इब्तिहाज की आंखों में आंखें डाले बोली थी। चलो ठीक है, मर्जी तुम्हारी। अब तुम्हें एडवेंचर का इतना ही शौक है तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। अच्छा है, हमारे बच्चों को कहानी सुनाने में मजा आएगा। एक बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ, इस बार मैं नहीं बल्कि रात तक तुम खुद मेरे पास चलकर आओगी मुझसे शादी करने। लगता है मजबूरन किसी को सूली चढ़ाना ही पड़ेगा। अपना ख्याल रखना बेब, रात में मुलाकात होगी। इत्तेहाज ने अपने होंठों पे शैतानी मुस्कुराहट सजाए बाहर चला गया और अपने गार्ड को कुछ कहा था। आगे क्या होने वाला था ये तो अल्लाह और इत्तेहाज ही जानता था। इत्तेहाज चला गया था और फिलहाल अमसाल ने सुकून का सांस लिया था। शाम के वक्त अमान कोई चीज लेने बाहर गया था, लेकिन अब उसे गए हुए काफी वक्त गुजर गया था और वो वापस ना आया था। जुबारिया बेगम और हमदान साहब बहुत परेशान हो गए थे। परेशान तो अमसाल भी थी। एक के बाद दूसरी नई मुसीबत सर पे खड़ी थी। न जाने कैसा इम्तिहान था इन लोगों का। अमसाल और अमान आपस में बहुत लड़ते थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। आखिर को भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसे है। हमदान साहब एक बार फिर अमान को ढूंढने बाहर गए थे। इत्तेहाद के गार्ड ने उसके कहने पर अमान को किडनैप किया था और इत्तेहाद के कहे के मुताबिक उसे जहांगीर इंटरप्राइजेस ले आए थे। अमान को उठवाने का मकसद सिर्फ अमसाल और उसके वालिदैन पर दबाव डालना था। इत्तेहाद के ऑर्डर थे कि अमान को बहुत शान से रखा जाए और जो वो कहे उसे फराम किया जाए। आखिर को उसका अकलौता साला था। अमान के लिए प्ले स्टेशन का भी बंदोबस्त किया गया था क्योंकि उसे बेड गेमिंग का शौक था और इत्तेहाद खुद भी उसके साथ गेम्स खेलने का इरादा रखता था। काफी देर बाद हमदान साहब वापस आए थे, लेकिन अमान साथ ना था। आसपास के लोगों से भी बस यही पता चल सका कि अमान किसी बड़ी गाड़ी में कुछ लोगों के साथ जा रहा था। जब जुबारिया बेगम को ये पता चला तो वो सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। जहाँ साल हमदान साहब की लाडली थी, वहीं दूसरी तरफ अमान जुबारिया बेगम का लाडला था। अमसाल को भी इस वक्त कुछ समझ ना आ रहा था कि अचानक ये हुआ क्या है। इस वक्त उसका दिमाग कुछ भी सोचने के काबिल ना था। रात के 8 बज चुके थे और अब तक अमान की कोई खैर खबर ना मिली थी। अपने वालिदैन को इस कदर परेशान देखकर अमसाल को बहुत तकलीफ हो रही थी। अमसाल का बस यही सोच रही थी कि क्या किया जाए, जब अचानक उसके दिमाग में धमाका सा हुआ। एक बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ, इस बार मैं नहीं बल्कि रात तक तुम खुद मेरे पास चलकर आओगी मुझसे शादी करने। लगता है मजबूरन किसी को सूली चढ़ाना ही पड़ेगा। इत्तेहाद के ये अल्फाज अमसाल के कानों में गूंजे थे। मुझे पता है अमान कहाँ होगा और ये सब किसने किया है। अमसाल एक फांस की कैफियत में बोली थी। क्या मतलब है तुम्हारा बेटा? हमदान साहब नासमझी में बोले थे। मीर इत्तेहाद जहांगीर, इसी का काम है ये। अमसाल अपने चेहरे पे पथरीले तासरात लिए बोली थी। कहाँ लेकर गया होगा वो अमान को? जुबारिया बेगम जो काफी देर पहले होश में आ चुकी थी रोते हुए बोली थी। पता नहीं, ये तो वही बता सकता है। अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो मैं हूँ। मैं कर लूंगी उससे शादी पापा, दे दूंगी मैं अपनी और अपनी अना की कुर्बानी। अमसाल को आखिरकार अपनी जिद से पीछे हटना ही पड़ा था। वो मीर इत्तेहाद जैसे शख्स का मुकाबला नहीं कर सकती थी। नहीं बेटा, मैं अपने बेटे की जिंदगी के लिए हरगिज भी अपनी बेटी को कुर्बान नहीं करूंगा। मैं उन जाहिल आदमियों में से नहीं हूँ जो अपनी बेटियों को कुर्बानी का बकरा समझकर सूलियों पर चढ़ा देते हैं। हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। हमदान साहब वाकई में अमसाल के आइडियल थे। मैं जानती हूँ पापा, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप मेरे पापा हैं, जिन्होंने हर कदम पे मेरा हौसला बढ़ाया है। आप मेरे हीरो हैं पापा। अमसाल की आंखों से आंसू बह निकले थे। हमदान साहब ने उसे अपने सीने से लगाया था। पुलिस कंप्लेन का कोई फायदा नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा पापा। आपने उसकी पावर देखी है ना। आई बेट पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती उसका। अमसाल बहुत तलखी से अपने आंसू साफ करते हुए बोली थी। लेकिन बेटा, जो तुम करने का कह रही हो वो भी ठीक नहीं है। हमदान साहब का दिल नहीं मान रहा था और मानता भी कैसे। तो पापा और क्या करें हम? इसके अलावा और कोई हल नहीं है हमारे पास। उसने आज ये किया है, कल को वो कुछ और कर देगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती आप में से किसी का भी नुकसान। वो ये सब सिर्फ हम पे दबाव डालने के लिए कर रहा है। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो इस सूरत में ये सब खत्म हो सकता है। अमसाल ठीक ही तो कह रही थी। मगर बेटा, हमदान साहब ने जिंदगी में कभी भी खुद को इतना मजबूर नहीं पाया था कि आज उनके पास वाकई में कोई हल नहीं था। आपके पास कोई और हल है पापा?
امسال نے سوال کیا تھا اور وہ جانتی تھی جواب کیا ہونا تھا۔ ہمدان صاحب خاموش رہے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آج انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک ناکام باپ ہیں جو اپنی اولاد کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئے تھے۔ میں جا رہی ہوں پاپا، اور امان کو ساتھ لے کر ہی آؤں گی۔ اتنا کہہ کر امسال اٹھی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہمدان صاحب اور زباریہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں بے بس تھے، اتنے بے بس کہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ اپنی اس پیاری سی لاڈلی بیٹی کو اتحاد کے ساتھ رخصت کر دیں۔ آج ان دونوں کے ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے وہ ہار گئے ہوں۔ امسال اپنے کمرے میں آئی تھی اور اتحاد کو کال کی تھی۔ 3 بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ زہر نصیب، کیسے یاد کیا مجھ غریب کو؟ دوپہر میں ہی تو مل کر گیا ہوں جان۔ اتحاد کی شوق آواز امسال کے کانوں میں زہر گھول رہی تھی۔ مجھے ملنا ہے آپ سے، امسال خود پہ ضبط کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت اتحاد کا انداز ایسا تھا جسے وہ حیران ہو رہا ہو۔ اتحاد ڈرامے کر رہا تھا اور اسے بہت مزہ آ رہا تھا اس سب میں نے کہا مجھے ملنا ہے آپ سے۔ امسال نے اپنی بات کافی تیز لہجے میں دہرائی تھی۔ ریلیکس، گاڑی تمہارے گھر کے نیچے کھڑی ہے، آ جاؤ ڈرائیور کے ساتھ آفس۔ آج میں وہیں ہوں۔ اتحاد جب سیریس ہو گیا تھا۔ میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آتی ہوں۔ امسال اپنی کالی چادر اوڑھے باہر نکلی تھی۔ ہمدان صاحب ساتھ جانا چاہ رہے تھے لیکن امسال نے انہیں منع کیا تھا۔ وہ مزید کوئی رسک لینا نہیں چاہتی تھی۔ اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے میری جان، زباریہ بیگم کے دل سے بے اختیار دعا نکلی تھی۔ امسال اپنے گھر کے باہر موجود گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی تھی اور کچھ ہی دیر بعد گاڑی جہانگیر انٹرپرائزز کے سامنے رکی تھی۔ امسال گاڑی کے رکتے ہی فوراً باہر نکلی تھی۔ اس وقت جہانگیر انٹرپرائزز میں اتحاد اور اس کے گارڈز کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ امسال نے بغیر یہاں وہاں رکے سیدھا اتحاد کے آفس کا رخ کیا تھا۔ ہیلو بیب، آخر کو تم آ ہی گئی۔ کہا تھا نا میں نے رات تک تم خود آؤ گی میرے پاس۔ امسال کو اندر آتے دیکھ اتحاد نے شوقی سے کہا تھا۔ امسال غصے میں چلتے ہوئے اتحاد کی طرف آئی تھی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد آفس میں زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ امسال نے اتحاد کے گال پہ اپنے نرم و ملائم انگلیوں کے نشان چھوڑے تھے۔ اتحاد کو امسال سے تھپڑ کی امید نہ تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے کسی لڑکی نے تھپڑ مارا تھا اور وہ بھی اس کی اپنی محبت نے۔ اتحاد کو غصہ تو بہت آیا تھا لیکن بہت مشکل سے وہ برداشت کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے امسال کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ ہو گیا، یہ کرنے آئی تھی؟ اتحاد نے بہت حد تک کوشش کی تھی اپنے لہجے کو درست رکھنے کی، لیکن پھر بھی لہجہ سخت تھا اور ضبط سے آنکھوں میں لالی اترنا شروع ہو گئی تھی۔ امسال کو بعد میں احساس ہوا تھا کہ غصے میں اس نے کیا کر دیا ہے۔ اب اسے اتحاد سے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ اس کے غصے کو ہوا دے چکی تھی، لیکن اتحاد کی بات اس کی توقع کے خلاف تھی۔ کس قسم کے ڈھیٹ اور بےغیرت انسان ہیں آپ؟ امسال کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ اتحاد کو اس وقت تک قتل کر چکی ہوتی۔ ڈھیٹ تو بہت ہوں میں لیکن بےغیرت نہیں ہوں۔ آج مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی کر لی ہے، آج کے بعد ایسا کرنا تو دور، سوچنے کی بھی ہمت نہ کرنا، ورنہ یہ جو تمہارا نازک سا ہاتھ ہے نا، اس کو توڑنے کے لیے مجھے زیادہ وقت محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اتحاد نے اچانک امسال کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے کر کے موڑا تھا جس کی وجہ سے امسال کو تکلیف ہوئی تھی۔ امسال اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ہی اپنے بائیں ہاتھ کی مدد سے اتحاد کو پیچھے دھکیل رہی تھی، مگر اس نازک سی لڑکی میں کہاں اتنی طاقت تھی جو اتحاد کو ہلا پاتی، اور بدلے میں اتحاد اس کا بایاں ہاتھ بھی کمر کے پیچھے موڑ کر پکڑ چکا تھا۔ ایسا کرنے کی وجہ سے امسال اتحاد کے بہت قریب ہو گئی تھی، دونوں کے درمیان فاصلہ کم تھا۔ میرے ہاتھ چھوڑیں اور دور ہٹیں مجھ سے۔ امسال تو ڈر ہی گئی تھی، پہلی بار وہ کسی مرد کے اتنے قریب کھڑی تھی اور اتحاد کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اب زخم دیا ہے تو مرہم بھی تو لگاؤ۔ اتحاد نے ایک جھٹکا دیا تھا جس سے امسال نے جو تھوڑا بہت فاصلہ بنایا تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور اس پہ جھکا تھا۔ اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اتحاد نے اپنی بات کہی تھی۔ اسے سہمی سہمی معصوم سی امسال بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ اس کا غصہ تو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ چھوڑے مجھے پلیز۔ اتحاد کو خود پہ جھکتے دیکھ کر امسال کی سانسیں رک گئی تھی۔ وہ ہلکی آواز میں منمنائی تھی، ساتھ ہی آنکھ کے کونے سے ایک ننھا آنسو کا قطرہ گرا تھا۔
इत्तेहाज की गर्म सांसें अमसाल का चेहरा झुलसा रही थी। हा हा हा, चिड़िया के जैसा तुम्हारा दिल है और मेरे सामने शेरनी बनती हो। परेशान नहीं हो, निकाह से पहले कुछ नहीं करूंगा। इत्तेहाज ने आहिस्ता से अमसाल को छोड़ दिया था, क्योंकि जितना तेज उसका दिल धड़क रहा था, इत्तेहाज को डर था कि कहीं बाहर ही न आ जाए। इत्तेहाज की बात से ना चाहते हुए भी शर्म से अमसाल के गालों पे लाल रंग नुमाया हुआ था, जिसे इत्तेहाज ने भी नोट किया था और उसके लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। अमसाल अपना चेहरा नीचे किए समझने की कोशिश कर रही थी कि उसको हुआ क्या। साथ ही खुद को दिल में ढेरों सलावातें सुनाई। मेरा भाई कहाँ है? अमान का ख्याल आते ही अमसाल फिर से अपने पुराने गुस्से वाले मूड में आ गई थी। बेटो आराम से, अपना ही ऑफिस समझो इसको, किसी जमाने में तुम भी यही काम करती थी। इत्तेहाज ने अमसाल की बात को नजरअंदाज किया था। मैंने पूछा मेरा भाई कहाँ है? अमसाल ने सख्त लहजे में अपनी बात दोहराई थी। मेरे पास है, मजे में है, तुम क्यों पूछ रही हो? इत्तेहाज बहुत चिल अंदाज में बोला था, जिसे अमसाल के नहीं बल्कि अपने भाई के बारे में बात कर रहा हो। छोड़ दे उसे प्लीज। अमसाल की आंखों से टप टप आंसू गिरना शुरू हो गए थे। छोड़ दूंगा हमारे निकाह के बाद, बल्कि साथ लेके आऊंगा निकाह वाले दिन। इत्तेहाज ने जवाब दिया था। छोड़ दे उसे, वो छोटा है, मैं तैयार हूँ आपसे निकाह करने के लिए। अमसाल रोते हुए बोली थी। वैसे इतना भी छोटा नहीं है, काफी समझदार है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए खाने पीने और गेम्स वगैरह सब चीजों का इंतजाम करवाया है। मीर इत्तेहाज जहांगीर का अकलौता साला है वो, उसकी खातिर तवाज़ो भी शाहाना होगी। इत्तेहाज अमसाल को तफसील से बता रहा था। मान गई हूँ ना मैं, अब छोड़ दें उसको, मैंने वादा किया है अपने मामा बाबा से कि अमान को साथ लेकर आऊंगी मैं। अमसाल इल्तिजा कर रही थी। वादे करो तुम और पूरे करूं मैं। वाह, कल छोड़ दूंगा पक्का, प्रॉमिस। मेरे वालिदैन आएंगे परसों बाकायदा रिश्ता लेने और निकाह की डेट फाइनल करने। इत्तेहाज के लहजे से ये खुशी झलक रही थी। नहीं, अभी के अभी छोड़े मेरे भाई को, जब मैंने कह दिया कि मैं निकाह कर लूंगी तो मैं कर लूंगी। अमसाल किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी। आई सेड नो। इत्तेहाज तो सदा का ढीठ था। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। अमसाल धुआंधार रोना शुरू हो गई थी। उफ, रोना नहीं यार, मुझे तकलीफ होती है तुम्हारे रोने से। छोड़ दूंगा ना, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ उसे मैं। अमसाल का रोना वाकई इत्तेहाज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नहीं नहीं नहीं, अभी छोड़े वरना मैं भी शादी नहीं करूंगी। अमसाल ने बहुत बेकार सी धमकी दी थी। और रियली, भाई तो मेरे पास ही है तुम्हारा। इत्तेहाज भी बहुत मजे से बोला था। आखिर धमकियां देने में माहिर था। कुछ तो भरोसा कर ले मुझ पे, जब मैंने कह दिया है एक बार। अमसाल मुंह बनाते हुए बोली थी। इस वक्त वो दोनों ऐसे बहस कर रहे थे जैसे पुराने दोस्त हों और दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो। फिलहाल अमसाल ये बात भूली हुई थी कि उसके सामने मौजूद शख्स से नफरत है। नहीं, एक दफा भागने की हिम्मत कर सकती हो तो भरोसा करना मुश्किल है। इत्तेहाज ने अमसाल को याद दिलाया था कि वो कैसे मुख छोड़कर जा रही थी। नहीं भागूंगी कहीं भी, प्लीज छोड़ दें अमान को। अमसाल ने बेबस होकर दोबारा अपने हाथ जोड़ दिए थे। जिंदगी में कभी भी उसने किसी की इतनी मिन्नत समाजत ना की थी जितनी आज करनी पड़ रही थी। अच्छा ना, ठीक है, ये हाथ मत जोड़ो करो मेरे सामने। तुम्हें तो हुक्म करने का इख्तियार दिया है मैंने। मामा बाबा के अलावा एक तुम ही तो हो जो मुझ पे हुक्म चला सकती हो। इत्तेहाज ने अमसाल के जुड़े हुए हाथ खोलते हुए कहा। न जाने क्यों अमसाल का दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसे उसने डांट के खामोश करवाया था। लेकिन अगर अब कोई भी होशियारी की तो तुम्हारा भाई और वो अरहान नामी चीज दोनों का मैं जो हाल करूंगा तुम याद रखोगी। इत्तेहाज का एकदम ही तब्दील हुआ था और सख्ती इख्तियार कर गया था। मैं कुछ नहीं करूंगी। अमसाल बहुत खौफजदा हो गई थी इत्तेहाज की धमकियों और बातों से। आखिर को वो लड़की थी। गुड, अब एक आंसू भी बाहर ना आए वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे भाई को। इत्तेहाज का लहजा अब भी सख्त था। नहीं रो रही मैं, आप अमान को बुलाएं प्लीज। अमसाल ने फटाफट अपने आंसू साफ किए थे, क्योंकि इत्तेहाज का कोई भरोसा नहीं था। इत्तेहाज को अमसाल की इस हरकत पे हंसी आई थी और वो खुलकर मुस्कुराया भी था। साथ ही कॉल करके अमान को बुलवाया था। जैसे ही अमान आया था, अमसाल ने उसे गले मिले ही थी और उसकी खैरियत पूछी थी। छोटे हीरो, आपकी बहना परेशान हो रही थी, बताओ इन्हें कि आपने एंजॉय किया मेरे साथ। इत्तेहाज अमान से मुखातिब था। जी बहुत मजा आया इत्तेहाज भाई, आप बहुत अच्छे हैं। आप ही इत्तेहाज भाई बहुत अच्छे हैं, सीरियसली मेरी इनसे अच्छी दोस्ती हो गई है। अमान पहले इत्तेहाज और फिर अमसाल से मुखातिब हुआ था। अमान को इत्तेहाज बहुत अच्छा लगा था। दूसरी जानिब अमसाल अमान को ऐसे देख रही थी जिसे कह रही हो ये मेरा ही भाई है ना। हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया बच्चे, चलो अब घर जाओ, सब परेशान हो रहे हैं। इत्तेहाज ने अमान के बाल खराब करते हुए कहा था।
आज आपने अमसाल हमदान सिद्दीकी को मार दिया मीर इब्तिहाज, मेरी अना मेरी जात सब खाक में मिल गई। अमान आगे चला गया था। अमसाल जाते हुए इब्तिहाज से कहना ना भूली थी, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक करूंगा। इब्तिहाज खुद भी खुश ना था ये सब करके। आज जो बेबसी अपने वालिदैन की आंखों में देखी है मैंने, उसका हिसाब आपको देना होगा। अमसाल मजबूत लहजे में बोली थी। ख्याल से जाना, इब्तिहाज बोला था, जबकि अमसाल बगैर कोई जवाब दिए चली गई थी। अमसाल और अमान घर पहुंच गए थे। जुबारिया बेगम अमान को अपने साथ लगाए बैठी हुई थी, जबकि अमान इन्हें यकीन दिला रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर सबके साथ बैठने के बाद अमसाल अपने कमरे में चली गई थी। उसे खुद को राजी करना था इस कड़ी मुसाफत के लिए। मामा पापा, अमसाल के जाने के बाद अमान गोया हुआ था। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? हमदान साहब बोले थे, अगर मैं आप लोगों को कुछ बताऊं तो क्या आप लोग मेरी बात मानेंगे? अमान तमहीज बांध रहा था। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? इस बार जुबारिया बेगम बोली थी, आप दोनों आप ही के लिए परेशान ना हो प्लीज। इब्तिहाज भाई बहुत अच्छे हैं पापा। अमान ने अपनी बात कही थी। क्या कह रहे हो तुम? वो बदमाश वडेरा और अच्छा हो सकता है। हमदान साहब के लहजे में गुस्सा था। पापा वो बदमाश नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ। अमान ने फिर अपनी बात दोहराई थी। इस बार अंदाज समझाने वाला था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अमान, क्या पट्टियां पढ़ाकर भेजा है उसने तुम्हें जो तुम उसकी जबान बोल रहे हो? जुबारिया बेगम भी अमान की बात से काफी गुस्से में आ गई थी। कोई पट्टियां नहीं पढ़ाई उन्होंने मुझे मामा, मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैं देख कर आया हूँ। यकीन करें मेरा आप लोग, वो आप ही को बहुत खुश रखेंगे। उनसे ज्यादा मोहब्बत आप ही को कोई नहीं कर सकता। अमान अपने वालिदैन को यकीन से बता रहा था, तुम छोटे हो अभी, तुम्हें कुछ नहीं पता, जाओ अपने कमरे में। हब्दान साहब कुछ सख्ती से बोले थे। पापा मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो ये सब समझ ना सकूं। मैं वहां उस लड़की की दीवानगी देख कर आया हूँ, और मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि आप ही के लिए उनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। वही आप ही को बर्दाश्त कर सकते हैं। आज ये बात मैं कह रहा हूँ, कल को आप दोनों भी कहेंगे। मैं वहां 5 घंटे या शायद इससे भी ज्यादा रहा हूँ, और इतने अरसे में देख लिया मैंने, जिसके नतीजे में ये बात आप लोगों से कर रहा हूँ। अमान जो शरारतें ही करता था, आज किसी बड़े भाई की तरह अपनी बहन के मुस्तकबिल के लिए इब्तिहाज को परख के आया था। अमान की बातें सुनकर जुबारिया बेगम और हमदान साहब दोनों को ही यकीन न आ रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों के दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। जब मुझे इत्तेहाज भाई के लोग लेकर गए थे तो मेरी अजीब कैफियत थी। फिर जब मेरा इत्तेहाज भाई से सामना हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मेरे सामने मौजूद शख्स की वजह से मेरे घर वाले परेशान थे। मैंने गुस्से में उनका गिरबान पकड़ लिया था पापा। मेरा दिल चाह रहा था उनको जान से मार दूं, लेकिन फिर इत्तेहाज भाई ने जिस तरह मुझसे बर्ताव किया और मुझसे जो बातें शेयर की, उसके बाद मुझे समझ आया कि वो बुरे इंसान नहीं, वो सिर्फ आप ही के लिए बुरे बन गए हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे भी आप ही शादी के लिए हाँ कर चुकी है। अपनी बात मुकम्मल करके अमान चला गया था। दूसरी जानिब हमदान साहब और जुबारिया बेगम अपनी सोचों में गुम हो गए थे। जे तुझे पता है, आज एक बार फिर वो रोई है, और उसके आंसू की वजह फिर से मैं ही बना हूँ। इत्तेहाज अपने पालतू कुत्ते के सर पे हाथ फेरते हुए बोल रहा था। लहजे में उसकी ही उदासियां आई थी। मैं क्या करूं जेक, उसे किसी भी सूरत छोड़ नहीं सकता मैं। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? इत्तेहाज अपने कुत्ते से सवाल कर रहा था, ये जानते हुए भी कि वो जवाब नहीं देगा। लेकिन इत्तेहाज को उदास देख कर जेक भी उदास लग रहा था। हाँ गलत कर रहे हो तुम छोटे मीर। मेराज जो इत्तेहाज को ढूंढते हुए लॉन में आया था, उसके बराबर में बैठते हुए बोला था, मैं क्या करूं बड़े मीर। इत्तेहाज के चेहरे पे थकन वाजे थी। वो शख्स जो कभी ना थकता था, आज अपने महबूब की आंखों में आंसू देखकर कमजोर पड़ रहा था। तुम खुद गर्जी कर रहे हो छोटे मीर, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तुम बहुत कुछ कर चुके हो। मिराज ने सच्चाई ही तो बताई थी। मिराज ने पहले भी इत्तेहाज को ये सब करने से रोका था। जानता हूँ मैं कि खुद कितना खुदगर्ज हो गया हूँ। मोहब्बत के दरिया में उतरते ही इत्तेहाज तलखी से हंसते हुए बोला था, तुम ऐसा तो कभी नहीं थे छोटे मीर। मिराज को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही इत्तेहाज है जिसे वो बचपन से जानता था। बस देख ले, मोहब्बत अच्छे अच्छों को बदल देती है। इत्तेहाज अब अपने शौक मूड में आ गया था, जिसका वो कुछ ही लोगों के सामने इजहार करता था। हाँ वो तो है, आज देख रहा हूँ आंखों से। खैर जो होना था हो गया, लेकिन तुमने अगर मेरी बहन जैसी भाभी को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिराज ने भी अपना मूड बदल दिया था। वो इत्तेहाज की रग रग से वाकिफ था। अभी भाभी आई भी नहीं है और आपने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। इत्तेहाज मुंह बनाते हुए बोला था। हा हा हा, बिल्कुल इतनी प्यारी और छोटी सी भाभी है मेरी।
मिराज बोला था। हाँ 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 हाँ, छोटी सी तो है वो, मासूम सी, लेकिन बहुत गुस्से वाली है। इत्तेहाद मुस्कुराते हुए बोला था। आंखों के सामने अमसाल का गुस्से वाला चेहरा आया था। अच्छी बात है ना, कोई तो हो जिसके गुस्से से तुम डरो। हमें तो तुमने अपने गुस्से से डरा धमका के रखा हुआ है। मिराज ने इत्तेहाद के गुस्से पे चोट की थी। अब तक मुझसे से ही बात की है उसने, मुझसे जब भी की है, पता नहीं प्यार से बात करते हुए कैसी लगती होगी। इत्तेहाद आंखों में शरारत लिए हुए बोला था। फिक्र नहीं करो, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा और उससे तुमसे मोहब्बत भी हो जाएगी। भाई आखिर को मेरा छोटा भाई है ही इतना खूबरू, मिराज बोला था। यकीन तो मुझे भी है बड़े मीर, एक बार वो मेरी हो जाए दुनिया की तमाम खुशियां उसके कदमों में ढेर कर दूंगा। इब्तिहाज अज़्म से बोला था। ए मेरे अल्लाह, इतना जुल्म मुझ मासूम पे ही क्यों होता है। हैदर की दुख भरी दुहाई मिराज और इब्तिहाज को सुनाई दी थी और अब दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। सही है भाई, पार्टी बदल ली, मुझे निकाल दिया दोनों ने अपनी टीम से, लेकिन मैंने सब सुन लिया है। हैदर की बात पे मिराज और इब्तिहाज दोनों हंसे थे और फिर तीनों का पागलपन शुरू हो गया था। तीनों भाई अपनी बातों में मसरूफ थे, लेकिन तीनों ही न जानते थे कि कोई पीछे खड़ा उनकी बातें सुन चुका है। रात के खाने के बाद इब्तिहाज अपने वालिदैन के कमरे में बाहर खड़ा दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। आज वो उन्हें अमसाल के बारे में बताना चाहता था। जन्नत बेगम ने दरवाजा खोला था और अब इब्तिहाज अपने वालिदैन के सामने अदब से बैठा था। बरखुरदार, आज कैसे तुम यहाँ का रास्ता भूल गए। जहांगीर साहब कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थे। उसे बंद करते हुए इब्तिहाज से मुखातिब हुए थे। बाबा, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं यहाँ कभी आता ही नहीं हूँ। इब्तिहाज मुंह बनाते हुए बोला था। हाँ हाँ हाँ, क्या फरमाइश लेकर आए हो बताओ। जहांगीर साहब को इब्तिहाज आज भी वो छोटा वाला इब्तिहाज लगा था जो अपनी फरमाइशों की पोटली उठाए उनके पास आता था। आज भी वो अपनी फरमाइश लेकर आया था, बस फर्क ये था आज वो कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि 25 साल जवान मर्द था। आपको कैसे पता मैं फरमाइश लेकर आया हूँ। इब्तिहाज मसनूई हैरत से बोला था। बाप हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किए मैंने। जहांगीर साहब मोहब्बत से बोले थे। लेकिन आपके बाल तो ब्राउन है बाबा। इब्तिहाज लहजे में शोखी और आंखों में शरारत लिए बोला था। बदले में जहांगीर साहब ने उसे घूरी से नवाजा था। ये सच था कि जहांगीर साहब ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था। बाकायदा एक्सरसाइज और कुछ उनकी खानदानी जीन्स का कमाल था जिसकी वजह से वो अपनी उम्र से छोटे लगते थे। बालों में कहीं कहीं हल्की सफेदी थी जो गौर करने पे नुमायां होती थी, वरना वो अपने बेटों के बड़े भाई लगते थे। फिर कोई नई गाड़ी चाहिए होगी साहबजादे को, जन्नत बेगम बेड पे बैठते हुए बोली थी। इब्तिहाज गाड़ियों का बहुत शौकीन था और कुछ महीनों बाद मार्केट में आई नई गाड़ी उसे चाहिए होती थी, लिहाजा अपने ब्लैक लैंड क्रूजर से वो बेपनाह मोहब्बत करता था क्योंकि वो उसकी जिंदगी में पहली आने वाली गाड़ी थी जो उसकी मलकियत थी। हाँ हाँ हाँ, नहीं मामा, आज गाड़ी की फरमाइश करने नहीं आया मैं, इब्तिहाज हंसते हुए बोला था। तो फिर अब बोल भी दो। जन्नत बेगम बोली थी। मैं शादी करना चाहता हूँ। इब्तिहाज ने बहुत आराम से अपनी बात कही थी। तुम सच कह रहे हो, जन्नत बेगम खुशी से बोली थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका ये बेटा जो लड़कियों से दूर भागता है कभी शादी की बात करेगा। जी बिल्कुल मेरी प्यारी मामा। इब्तिहाज जन्नत बेगम को यकीन दिला रहा था जबकि जहांगीर साहब चुप करके उनकी बातें सुन रहे थे। फिर परीक्षा कैसी रहेगी, मुझे तो बहुत पसंद है वो। घर की बच्ची है, हमारी आंखों के सामने बड़ी हुई है, खूबसूरत भी बहुत है माशाल्लाह, तुम्हारे साथ खूब जचेगी। जन्नत बेगम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। बिलाशुबा परीशे बहुत खूबसूरत थी। मुझे नहीं पसंद वो, वैसे भी मैंने उसे हमेशा अपनी बहन समझा है। परीशे का नाम सुनकर इब्तिहाज का हलक तक कड़वा हो गया था। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले नहीं सोचा था अब सोच लो। जन्नत बेगम को शायद परीशे को ही अपनी बहू बनाना था। मेरे साथ जो जचेगी उसे मैं पसंद कर चुका हूँ मामा। इत्तेहाज बहुत चिल अंदाज में बोला था और उसका यही चिल अंदाज कब गुस्से में तब्दील हो जाता ये उसे खुद भी पता न चलता था। क्या मतलब है तुम्हारा, जन्नत बेगम ने आईब्रो उचका कर पूछा था। मतलब ये कि आपकी होने वाली बहू को मैं बहुत पहले पसंद कर चुका हूँ, उसका नाम अमसाल है। मैं मोहब्बत करता हूँ अमसाल से और उसी से शादी करूंगा। इत्तेहाज ने तफसीली जवाब दिया। कहीं ये बच्ची वही तो नहीं जो हमारी कंपनी में जॉब करती थी। इतने अरसे में पहली बार जहांगीर साहब बोले थे, अंदाज में तस्दीक अमेज था। जी बाबा, ये वही है, अमसाल हमदान सिद्दीकी। इत्तेहाज ने तस्दीक के कहा। माशाल्लाह, अच्छी और प्यारी बच्ची है वो, मुझे कोई एतराज नहीं है। कब जाना है उसके घर। जहांगीर साहब बहुत पहले ही अमसाल की जानिब इत्तेहाज का झुकाव नोट कर चुके थे और इन्हें अपने बेटे की खुशियां बहुत अजीज थी।
मैं तो कहता हूँ अभी ही चले जाएं। हाँ हाँ हाँ, कल जाइएगा आप लोग। इब्तिहाज हंसते हुए बोला था। ठीक है, मुझे एड्रेस दे देना, हम कल ही जाएंगे, जहांगीर साहब ने फैसला किया था। थैंक यू सो मच बाबा, आई लव यू। इब्तिहाज खुशी से अपने बाबा के गले मिला था, जिसपे जहांगीर साहब ने मुस्कुरा कर लव यू टू कहा था। मुझे नहीं मंजूर ये रिश्ता। आखिर आप अपने भाई की बेटी पे किसी बाहर की लड़की को कैसे फोकियत दे सकते हैं? जन्नत बेगम ने इतराज किया था। इब्तिहाज जा चुका था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खुशी अजीज है बेगम, और मैं वही करूंगा जिसमें उसकी मर्जी शामिल होगी। वैसे भी वो बच्ची बहुत सुलझी हुई और ज़हीन है। जहांगीर साहब फैसला कर चुके थे और उस पे से उन्हें कोई नहीं हटा सकता था। जहांगीर साहब ने इब्तिहाज और मिराज की तमाम बातें सुन ली थी, लेकिन आधी उन्हें इस बात की खबर न थी कि अमसाल इस शादी के लिए दिल से राजी नहीं, और ये भी उनका लाडला बेटा उससे जबरदस्ती शादी कर रहा है। क्योंकि अगर उनके इल्म में ये बात होती तो वो कभी ऐसा ना होने देते। अगर अमसाल या उसके वालिदैन जहांगीर साहब से ही मदद मांगते तो ये वो शादी किसी भी सूरत ना होने देते, लेकिन ये बात अमसाल या उनके वालिदैन को बताता कौन? शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अगले रोज जहांगीर साहब और जन्नत बेगम अमसाल के घर आए थे, अपने छोटे बेटे मीर इत्तेहाद जहांगीर का रिश्ता लेकर। अमसाल के वालिदैन को जहांगीर साहब बहुत सुलझे हुए भले आदमी लगे थे। खाना पूरी के लिए हमदान साहब ने कुछ दिनों का वक्त मांगा था। जवाब तो उन्हें इत्तेहाज का मर्जी का ही देना था। 3 रोज के बाद अमसाल के घर वालों ने हाँ में जवाब दिया था। जहांगीर मैंशन में शादी की तैयारियां बहुत जोरों शोर से शुरू हो चुकी थी। आखिर को घर के आखिरी और लाडले सपूत की शादी होने वाली थी। इत्तेहाज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी मोहब्बत उसे जल्द मिलने वाली थी, ये सोचकर ही वो खुशी से पागल हो रहा था। इत्तेहाज की शादी होने वाली है, ये खबर हवेली वालों को भी पता चल गई थी, और परीक्षे के लिए तो उसकी दुनिया ही उलट गई थी। 3 दिन से वो अपनी मोहब्बत का मातम मना रही थी, न कुछ खा रही थी न पी रही थी, बस दुख की मूरत बनी अपने कमरे में रहती थी। रुमाना बेगम अपनी बच्ची का ये हाल देख खासी परेशान थी, लेकिन उन्होंने ये बात हवेली में किसी को भी पता न चलने दी थी। जन्नत बेगम को अमसाल कुछ खास पसंद नहीं आई थी, जबकि वो बहुत खूबसूरत थी। इस पसंदीदगी की वजह उसका मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखना था, लेकिन वो किसी किस्म का एतराज नहीं कर पाई थी। जन्नत बेगम मगरूर तो न थी, लेकिन अपने इतने खूबसूरत बेटे के लिए वो वही बहू भी किसी अमीर खानदान से लाना चाहती थी। अमसाल की तरफ से जन्नत बेगम का दिल खराब करने में बहुत बड़ा हाथ रुमाना बेगम का था, जो वक्तन फवक्तन इन्हें तीली लगाती रहती थी। जन्नत बेगम उनके मक्कार खेल को समझ नहीं पा रही थी। अमसाल के हिस्से में अभी और कितनी मुश्किलात आने वाली थी, ये अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं जानता था। अमसाल के घर वालों की तरफ से जवाब मौसूल होने के बाद एक बार फिर जहांगीर साहब जन्नत बेगम के हमरा शादी की तारीख तय करने आए थे। इस बार मेराज भी उनके साथ था। तो भाई साहब, फिर क्या सोचा है आपने, कब की तारीख रखी जाए? मीर जहांगीर ने बात का आगाज किया। जैसे आपको मुनासिब लगे, बस हमें कुछ वक्त दरकार है तैयारी के लिए, हमदान साहब ने जवाब दिया था। देखिए भाई, अल्लाह ने हमें हर चीज से नवाजा है, बल्कि औकात से बढ़कर ही नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए आप इसकी फिक्र ना करें। हमें तो बस अपनी बेटी चाहिए। जहांगीर साहब आजी से बोले थे। उनके लहजे की मिठास उनकी तबीयत का खासा थी। जी वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपनी लाडली को खाली हाथ तो रसद नहीं करूंगा। उसकी जरूरत की हर चीज के लिए कुछ वक्त तो चाहिए होगा, और साथ ही शादी के इंतजाम के लिए भी। हमदान साहब ने अपना मौका बयान किया। आपकी बात भी ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, अगले महीने की तारीख तय करते हैं, और शादी के जो भी इंतजाम है वो हम मिल बांट कर लेंगे। जहांगीर साहब ने हल पेश किया, जो कि अमसाल के वालिदैन को भी मुनासिब लगा। जी बेहतर, अगले महीने की तारीख ठीक रहेगी। हमदान साहब मान गए थे। वो चाहकर भी मजीद देर नहीं कर सकते थे, और इसका कोई फायदा भी नहीं था। ड्राइंग रूम के बाहर खड़ी अमसाल तमाम बातें सुन रही थी। अमसाल से अपने माँ बाप की बेबसी बर्दाश्त न हो रही थी। आंसू थे जो लड़ियों की सूरत बह रहे थे, लेकिन अब उसे मजबूत होना था। उसे अपने माँ बाप की हिम्मत बनना था, और वो उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। यूनिवर्सिटी से कुछ दिनों के लिए इंतजामिया की जानिब से छुट्टियां दी गई थी, जिसकी वजह से ये 6 दोस्त काफी दिनों से एक दूसरे से ना मिले थे। आज सबने मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन अमसाल इस वक्त किसी से मिलने या किसी का सामना करने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने बहाना बनाकर सहूलत से इनकार कर दिया था। इस पूरे अरसे में अमसाल अरहान को बिल्कुल ही फरामोश कर गई थी। अब एक और बहुत मुश्किल मरहला था अमसाल के सामने, और वो था अरहान को शादी से इनकार करना। ये सब वो कैसे करेगी, इस बारे में सोच कर ही अमसाल बहुत परेशान थी। परेशानियां तो जैसे जैसे किसी आसेब की तरह चिमट गई थी। ये सोच ही अमसाल को शर्मिंदगी की गहरी खाई में धकेल देती थी। आखिर वो किस मुंह से अरहान का सामना करेगी?
टेंशन से और सुबह शाम रो रो कर अब अमसाल की तबीयत खराब हो गई थी। 1 महीने बाद की डेट क्यों रख दी आप लोगों ने? अगले हफ्ते की डेट फिक्स करने का कहा था ना मैंने बाबा। इत्तेहाज नाराजगी का इजहार करते हुए मुंह के आड़े टेढ़े जाविये बनाए अपने बाबा से मुखातिब था। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? मीर जहांगीर अपने एक आईब्रो उचकाते हुए बोल पूछ रहे थे। नहीं रह सकता ना मैं ज्यादा दिन आपकी बहू के बगैर। इत्तेहाज आंख मारते हुए शरारत से बोला था। मीर जहांगीर अपने बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्तों जैसा रवैया रखते थे और इत्तेहाज तो था ही उनका लाडला। इधर आओ जरा, मैं तुम्हारा सारा छछोरापन निकालता हूँ। जहांगीर साहब ने आंखें दिखाते हुए कहा था, लेकिन वो सिर्फ मजाक कर रहे थे, क्योंकि इत्तेहाज अपने बाबा से ऐसे ही बात करता था। बाबा, मेरी मोहब्बत को छिछोरापन तो ना कहें। इत्तेहाज किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाए हुए बोला था। ज्यादा बातें नहीं करो, मेरे साथ काम करो जाके अपना। मुझे 2 घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन मुकम्मल चाहिए। गॉट इट। जहांगीर साहब अपने वर्क मूड में आ गए थे। जहांगीर साहब को हर काम में परफेक्शन चाहिए होती थी। इत्तेहाज बहुत अच्छे से जानता था जहांगीर साहब के 2 घंटे का मतलब 2 घंटे ही था, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। जहांगीर साहब ऑफिस में अपने बेटों का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते थे और गलती पे उन्हें भी वही कुछ सुनना पड़ता और उनकी भी वैसी ही शामत आती थी जैसे किसी भी आम एम्प्लॉय की। यही वजह थी कि जहांगीर साहब को उनकी कंपनी का एक एक एम्प्लॉय पसंद करता था। वो अपने बेटों और बाकी लोगों में फर्क ना करते थे। दूल्हे से कौन काम करवाता है, बहुत जालिम है आप बाबा। इत्तेहाज कहता हुआ बाहर चला गया था, जबकि जहांगीर साहब ने मुस्कुरा कर नफी में सर हिलाया था। इत्तेहाज काफी देर से अमसाल को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा था। इत्तेहाज को अमसाल से मिलना था और वो ये भी जानता था कि अमसाल उससे कभी नहीं मिलेगी। मीर इत्तेहाज, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा तुझे भी। इत्तेहाज खुद से मुखातिब था, नजरें सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन पे थी। तुम्हारी यही हंसी तुम्हारे चेहरे पे वापस लेके आऊंगा मेरी जान, ये मेरा वादा है तुमसे। और मीर इत्तेहाज अपने वादे से कभी नहीं तोड़ता। अब भी इत्तेहाज स्क्रीन पे नजरें जमाए बोला था, जिसपे अमसाल की तस्वीर थी, जिसमें वो खिलखिला कर हंस रही थी। अमसाल की ऐसी ही बहुत सी तस्वीरें इत्तेहाज के लैपटॉप में थी और उनमें से बहुत सी तस्वीरें उसने खुद खींची थी। अमसाल के बुखार में कमी आई थी, लेकिन कमजोरी अब भी थी। दवाओं के जेर असर अमसाल बेबस हो गई थी। अब रात का 1 बज रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अमसाल अपने कमरे में मौजूद अपने सबसे पसंदीदा काम कर रही थी और वो था नॉवेल पढ़ना। अमसाल पढ़ने में मसरूफ थी जब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे गैलरी में कोई खड़ा है। अब अमसाल की सारी तवज्जो उस तरफ थी और वो डर भी लग रहा था। जिन वगैरह से सबकी तरह वो भी बहुत डरती थी और वैसे ही आधी रात हो रही थी। शैतानी ख्यालात है कि दौड़े दौड़े उसके दिमाग में आ रहे थे। अमसाल यही सोच रही थी कि अब क्या करे, जब उसे एक साया नजर आया जो गैलरी में यहाँ से वहां चलता हुआ महसूस हो रहा था। अमसाल ने अपने मुंह पे सख्ती से हाथ रख लिया था ताकि कोई आवाज ना निकले। उसके हाथ पैर कांपना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर दिमाग में ख्याल आया कि कहीं कोई चोर ना हो। यही सोचकर अमसाल ने हिम्मत की और नॉवेल बेड पे रखने कर वहां से बगैर आवाज किए उठी थी। कमरे में एक कोने में मौजूद स्टडी टेबल पे फ्रूट बास्केट रखी थी, जिससे अमसाल ने छुरी उठाई थी और साथ ही दूसरे हाथ में साइड टेबल पे मौजूद गुलदान उठा लिया था अपनी हिफाजत के लिए। बाएं हाथ में पकड़े अमसाल अब गैलरी की जानिब बढ़ी थी कि अचानक गैलरी का दरवाजा खुला था। अमसाल एकदम से बदहवास हो गई थी और आने वाले पे छुरी से वार कर बैठी थी। इस सामने वाले को मार कर अब चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि उसके मुंह पे किसी के भारी हाथ ने उसकी चीख को उसी पल रोक दिया था। इत्तेहाज का दिल किसी भी तौर सुकून न ले रहा था। उसे हर हाल में अमसाल से मिलना था। दिल की जिद के आगे हार कर वो रात को 12:30 बजे इत्तेहाज निकल गया था अमसाल से मिलने। रात का वक्त था, इसलिए रोड पे ज्यादा ट्रैफिक न था। इत्तेहाज तेज ड्राइव करते हुए 20 मिनट बाद अमसाल के घर के नीचे खड़ा था। एक बार फिर अमसाल को कॉल की थी, लेकिन उसका फोन अब भी बंद जा रहा था। एक ही रास्ता था अमसाल तक पहुंचने का, और वो था अमसाल के कमरे की गैलरी तक जाता पाइप। किसी दिन आ गए हैं मेरे, अब ये भी करना पड़ेगा मुझे, इत्तेहाज पाइप को देखते हुए बोला था। 5 मिनट की मेहनत के बाद इत्तेहाज ऊपर चढ़ गया था और अमसाल की गैलरी में कूदा था। ये उसके लिए कोई मुश्किल काम न था। इत्तेहाज मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट था। पाइप चढ़ना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। गैलरी का दरवाजा लॉक था और अब इत्तेहाज वहीं टहलते हुए सोच रहा था कि दरवाजा कैसे खोले।
इब्तिहाज के वॉलेट में सिम इजेक्टर मौजूद होता था और अब उसकी मदद से इब्तिहाज लॉक खोल रहा था। ताला खोलते में तो इब्तिहाज वैसे भी माहिर था क्योंकि बचपन में उसने हैदर के साथ मिलकर बहुत ताले खोले थे। ये काम दोनों को हमेशा से एडवेंचर से भरपूर और थ्रिलिंग लगता था। कुछ ही देर में लॉक खुल चुका था और जैसे इब्तिहाज दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, सामने से उस पर वार हुआ था। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि इत्तेहाद को एक पल के लिए कुछ समझ ही ना आया, लेकिन फिर देखा तो सामने अमसाल हाथ में छुरी लिए खड़ी, आंखें फाड़े इत्तेहाद को देख रही थी। छुरी के किनारे से खून टपक रहा था और इत्तेहाद के कंधे से सफेद शर्ट लाल होना शुरू हो गई थी। खून देखकर अमसाल का मुंह खुला था। अमसाल क्या करने वाली है ये समझ आते ही फौरन इत्तेहाद ने उसके मुंह पे अपना भारी मर्दाना हाथ रख दिया था। इत्तेहाद का हाथ अब भी अमसाल के मुंह पे सख्ती से रखा हुआ था, जबकि अमसाल खुद दीवार के साथ लगी हुई थी। एक हाथ में छुरी थी और दूसरे में गुलदान। आंखें इम्तिहाज के कंधे से निकलते हुए खून पे टिकी हुई थी। जब इम्तिहाज को तसल्ली हुई तो उसने अपना हाथ हटाया और अब खुद भी कभी अमसाल के हाथ में पकड़ी छुरी और साथ ही अपने कंधे से निकलता हुआ खून देख रहा था। आप यहाँ क्या करने आए हैं? अमसाल गुलदान उसकी जगह पे रखते हुए बोली थी। मिलने आया हूँ तुमसे। फोन क्यों बंद है तुम्हारा? इत्तेहाज अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बोल रही थी। साथ ही अमसाल के बेड पे बैठ गया था। दफा हो जाए यहाँ से, मुझे शक्ल नहीं देखनी आपकी। अमसाल नफरत से बोली थी। यार कितनी बेहस हो तुम। पहले थप्पड़ मारा और मेरा गाल लाल कर दिया और अब मुझ पे दोबारा हमला किया और इतनी नफरत से बोल रही हो कि चला जाऊं यहाँ से। इब्तिहाज अब खड़ा होके अमसाल की तरफ बढ़ा था जो दीवार से किसी छिपकली की तरह चिपकी हुई थी और आखिरी बात अमसाल के अंदाज में ही कही थी। दूर जाएं, बिल्कुल दूर। अमसाल ने इब्तिहाज को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा था तो एकदम बदहवास होकर बोली थी। अरे मेरी बिल्ली, अपने शेर को जख्मी करके बोल रही हो दूर रहूं? इब्तिहाज ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा था और अमसाल के करीब आके अपना एक हाथ दीवार पे रखा था। बिल्ली किसको बोला? अमसाल ने अचानक ही कमर पे हाथ रख के लड़ाका औरतों की तरह कहा था। तुम मेरी बिल्ली ही तो हो यार, मेरे सामने शेरनी बनती हो, लेकिन फिर मेरी एक ऊंची आवाज पे ही शेरनी से भीगी बिल्ली तो हुई ना तुम मेरी बिल्ली। इब्तिहाज ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा था। खुद होंगे बागड़ बिल्ले, अमसाल ने नरोटेपन से कहा था और इब्तिहाज ने कहकहा लगाया था। बागड़ बिल्ला नहीं मेरी जान, शेर हूँ तुम्हारा। और जानती हो ना कि जख्मी शेर कितना खतरनाक होता है? इब्तिहाज ने अचानक ही अपना लहजा तब्दील किया था और अब लहजे में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। इब्तिहाज के इस अंदाज से अमसाल खौफजदा हुई थी। आपका खून बह रहा है। अमसाल से बोला भी नहीं जा रहा था इतना खून देखकर। और दूसरी वजह इब्तिहाज का गुस्सा। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरा खून बह रहा है और तुम कह रही हो कि मैं जाऊं यहाँ से। इब्तिहाज ने मुंह बनाते हुए कहा। अब अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये इंसान, अमसाल ने दिल में खुद से कहा था क्योंकि इब्तिहाज का मूड बिल्कुल वैसे ही बदल रहा था जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है। हाँ तो अस्पताल जाए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आपका इलाज करूंगी। अमसाल ने इब्तिहाज को पीछे करके कुछ फासला कायम किया था, वरना तो अमसाल को सांस लेने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। तुम वाकई बहुत बेहिस हो, मुझे पता है तुम्हें फर्स्ट एड देना आती है और सच बताऊं तो मेरा इलाज सिर्फ तुम्हारे पास ही है। चलो शाबाश, अब मरहम लगाओ इस जख्म पे जो तुम्हारी देन है। इब्तिहाज दोबारा बेड पे बैठ गया था। चीप बातें करने में तो माहिर हैं। आपको कैसे पता ये बात? पहली बात अमसाल खुद में ही बड़बड़ाई थी, जबकि दूसरी बात हैरत से पूछी थी। तुम्हारे बारे में तो मुझे भी पता है जो शायद तुम खुद भी नहीं जानती। तुम्हारे बचपन से लेकर मौजूद वो वक्त तक की सारी खबरें हैं मेरे पास। इब्तिहाज ने जवाब दिया था, जबकि अमसाल होंठों की तरह इब्तिहाज को देख रही थी। बुखार के बाद दिमाग काम नहीं कर रहा था शायद। अब वहाँ क्या मुजस्मे की तरह खड़ी हो, यहाँ आकर बैंडेज करो मेरी, वरना अगर ज्यादा खून बह गया तो तुम ही से लूंगा फिर। इब्तिहाज बहुत मजे लेते हुए बोला था। शर्ट उतारे, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ रही हूँ, कहकर अमसाल कमरे से बाहर चली गई थी क्योंकि इब्तिहाज इतनी आसानी से टलने वाला नहीं था। इब्तिहाज ने अपनी शर्ट के बटन खोले थे लेकिन शर्ट उतारने में खासी तकलीफ हो रही थी, इसलिए वैसे ही बैठा रहा था। मैं आपसे कुछ कह कर गई थी शायद। अमसाल की एक आईब्रो उठ चुकी थी, इसे गुस्सा जो आ रहा था। साथ ही बॉक्स बेड पर रखकर उसमें से सामान निकाल रही थी। मेरी मदद करो उतारने में प्लीज, तकलीफ हो रही है हाथ मोड़ने से। इब्तिहाज ने गुजारिश की थी लेकिन चेहरे पे तकलीफ के आसार ना था। वो माहिर था अपनी तकलीफ छुपाने में। अमसाल सोच रही थी कि उस पे ये वक्त भी आना था। अमसाल को अच्छा नहीं लग रहा था इब्तिहाज को इस हाल में देखकर, फिर चाहे सामने वो जालिम ही क्यों ना था। आखिर वो
ये सब अमसाल की वजह से ही हुआ था। ऐसे ही हम थी अमसाल, उसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे ये उसे हरगिज भी कबूल न था। अपने आसपास लोगों में खुशियां बांट कर वो खुद भी खुश रहती थी। अमसाल खामोशी से बेड पर चढ़ी थी और पीछे से इत्तेहाज को शर्ट उतारने में मदद कर रही थी। इत्तेहाज अब सिर्फ ब्लैक बनियान और ब्लैक की जीन्स में मजे से बैठा था, जबकि अमसाल उसके जख्म का मुआयना किसी माहिर डॉक्टर की तरह कर रही थी। इत्तेहाज के कसरती सुर्ख और सफेद बाजू न जाने क्यों अमसाल का दिल धड़का रहे थे। ये वक्त अमसाल के लिए मुश्किल होने वाला था, ये सोच उसके दिमाग में आई थी, जिस पर उसने खुद को काफी डपटा था। अच्छे हैं ना? इत्तेहाज की आंखें शरारत से भरी हुई थी। क्या? अमसाल, जो अब भी इत्तेहाज का बाजू देख रही थी, इत्तेहाज के इस सवाल पे सवालिया नजरों से पूछा था। माई मसल्स डम्बू, इत्तेहाज ने आंखें चढ़ाते हुए अपने कसरती बाजू की नुमाइश की थी। आप इतनी फजूल बातें कैसे कर लेते हैं? अमसाल को आग लग गई थी इत्तेहाज की इस बात से। फजूल तो नहीं है, लड़कियां मरती हैं, इत्तेहाज ने फखरी अंदाज में कहा था। दिमागी मरीजा होंगी इसलिए मरती हैं। आज के बाद मुझसे ऐसी फालतू बातें ना करिएगा। अमसाल रुई पे एंटीसेप्टिक डालते हुए सख्ती से बोली थी और इत्तेहाज का मुंह बन गया था, क्योंकि अमसाल ने बेइज्जती जो कर दी थी। कट तो गहरा लगा है, फ्रूट नाइफ से गहरा कट कैसे लग सकता है? अमसाल रुई से खून साफ करते हुए खुद से कह रही थी। तुम्हें मार कर बताऊं कि जब पूरी ताकत से वार किया जाए तो गहरा कट कैसे लगता है? इत्तेहाज ने अपने हाथ में छुरी लेते हुए तन से कहा था। देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो अनजाने में हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं सॉरी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ना मारिएगा। इत्तेहाज की बात सुनकर और उसके हाथ में छुरी देखकर अमसाल बेड से उतर के गैलरी के दरवाजे तक भाग गई थी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा दिल वाकई में चिड़िया जैसा है। इधर आओ और मरहम पट्टी करो। तुम्हें नुकसान पहुंचाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। इत्तेहाज हंसते हुए बोला था और अमसाल को इसके हंसने पर गुस्सा आ रहा था। अमसाल वापस आकर चुपचाप पट्टी कर रही थी। खून एक बार फिर बहने लगा था, जिसको अमसाल ने एंटीसेप्टिक की मदद से रोका था और अब पट्टी करने में मसरूफ थी। अमसाल के लंबे बाल इस वक्त जूड़े में कैद थे, लेकिन कुछ शरीर लटें उसके चेहरे का अहाता किए हुई थी। इत्तेहाज को अपना दिल इन लटों में उलझता हुआ महसूस हो रहा था। वो अमसाल को देखने में मसरूफ था। उसे उन आवारा लटों से रकाबत भी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो अमसाल के गाल छू रही थी। हो गया फाइनली, अमसाल चीजें वापस बॉक्स में रखते हुए बोली थी। इतने प्यार से बैंडेज की है तुमने, अगर ऐसे ही करोगी तो मैं रोज खुद को जख्मी करके तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। कसम से इस जख्म से मोहब्बत हो गई है मुझे। इत्तेहाज का लहजा मोहब्बत से चूरता। अजीब छुछोरे इंसान हैं ये, दिमाग के स्क्रू बिल्कुल ही ढीले हैं शायद। अमसाल खुद में बड़बड़ाते हुए रूम से बाहर निकल गई थी। उसे कहाँ पता था कि इत्तेहाज के स्क्रू उसको देखते ही ढीले हो जाते थे। अमसाल के जहन में इस वक्त ढेरों सवाल थे। कुछ देर पहले उसे क्या हुआ था? क्यों आज उसे इत्तेहाज पे गुस्सा नहीं आया था? क्यों आज वो बहुत दिनों के बाद नॉर्मल थी? क्यों वो आज इत्तेहाज के सामने पुरानी अमसाल थी? इन तमाम सवालों का जवाब उसके दिमाग यही था कि इत्तेहाज उसकी वजह से जख्मी हुआ था, इसलिए वो कुछ नर्म थी और बस। छोटे मीर, रात के इस पहर तुम कहाँ हो? कॉल उठाते ही पहला सवाल यही किया गया था। अमसाल के बाहर जाने के बाद इत्तेहाज का फोन बजा था। अरे अरे, ना सलाम ना दुआ, इत्तेहाज हंसते हुए बोला था। ओ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं परेशान हो गया था क्योंकि तुम ऐसे मुझे बगैर बताए नहीं जाते हो। मीर मेराज के लहजे में अपने छोटे भाई के लिए फिक्र थी। वालेकुम सलाम। वो क्या है कि मैं एक जरूरी मिशन पे निकला हुआ हूँ, बस दुआ करें शहीद ना हो जाऊं, क्योंकि यहाँ हालात खासे खराब चल रहे हैं। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि अब आप बीवी वाले हो गए हैं। ऐसे डिस्टर्ब करना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा। इत्तेहाज मजाहिया अंदाज में बोला था। मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि तुम कौन से मिशन पे हो। तुम सुधर जाओ इत्तेहाज, वरना मैं बाबा से कहकर तुम्हें ठीक करवाऊंगा। मेरा आज सीरियस था। अब आप तो धमकियां ना दे मुझे बड़े मीर, इत्तेहाज नाराज होते हुए बोला था। फौरन घर आओ, टाइम देखो क्या हो रहा है। मेराज ने ऑर्डर दिया था। जी अब्बू जान, आता हूँ थोड़ी देर में, इत्तेहाज ने कहकर कॉल काट दी थी। अमसाल जब वापस कमरे में आई तो इत्तेहाज वैसे ही शाहाना अंदाज में बैठकर विराजमान था जैसे वो छोड़कर गई थी। इत्तेहाज को ऐसे बैठे देखकर अमसाल का खून खोल गया था। दिल तो चाह रहा था कि गुलदान इससे इत्तेहाज का सर फाड़ दे। आप प्लीज अपनी शर्ट पहने और जाएं यहाँ से। इससे ज्यादा मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी आंखों के सामने। अमसाल नजरें झुकाए बोली थी, लेकिन लहजा सख्त था। अब तो सारी जिंदगी यही शक्ल देखनी पड़ेगी तुम्हें।
हुक्म करो तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं? इब्तिहाज ने आंख मारते हुए कहा था। साथ ही शर्ट उठाई थी जिसे पहनने में उसे तकलीफ हुई थी। इसकी जरूरत नहीं है, बस दूर चले जाएं आप मेरी नजरों से। अमसाल ने अपना मुंह फेर लिया था। आज के बाद मुझसे कभी मुंह ना मोड़ना और ना ही कभी खुद से दूर करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमसाल के मुंह मोड़ने पे इब्तिहाज को पतंगे लग गए थे। वो गुस्से से उठा था और अमसाल को बाजू से पकड़कर दीवार से लगाया था। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़े मेरा बाजू। अमसाल ने आंखों में पानी लिए इब्तिहाज को कहा था, क्योंकि इब्तिहाज की गिरफ्त अमसाल के बाजू पे इस कदर सख्त थी कि उसे इब्तिहाज की उंगलियां अंदर धंसती हुई महसूस हो रही थी। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी अगर आज के बाद ऐसा किया तो। इब्तिहाज को अचानक ही इतना गुस्सा आ गया था और अमसाल उसके अताब का शिकार हो रही थी। अपनी बात कहकर इब्तिहाज ने अमसाल को झटके से छोड़ा था। हाँ तो मार देना, अच्छा है, जान छूटेगी मेरी आपसे। अमसाल गुस्से से तकरीबन चीखी ही थी। अमसाल बेचारी तो इब्तिहाज के ऐसे गुस्से होने पे काम करे गई थी। अमसाल को आदत न थी इतनी सख्त रवैयों की। उसे तो हमेशा से ही बहुत नरमी से बात की गई थी। अमसाल ने एक बात तो सोच ली थी कि अब वो इत्तेहाद के गुस्से का सबब नहीं बनेगी, क्योंकि इस सर तेरे शख्स का कोई भरोसा न था। गुस्से में कहीं उसे सच में ही न मार दे। सॉरी जान, डरा दिया ना मैंने तुम्हें। इत्तेहाद से महसूस किया कि अमसाल उससे डर गई है, इसलिए अपने दिमाग को ठंडा किया था और फिर से अमसाल की तरफ बढ़ा था। लेकिन अमसाल डर कर पीछे हुई थी, मगर हाय रे किस्मत, वो एक बार फिर दीवार से जा लगी थी। पर प्लीज जाए यहाँ से। डर के मारे अमसाल की आवाज न निकल रही थी। उसे इत्तेहाद इस वक्त किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। क्यों दिलाती हो मुझे इतना गुस्सा? हाँ, कितनी बार वार्न कर चुका हूँ तुम्हें कि मुझे गुस्सा ना दिलाया करो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, बता चुका हूँ ना। इत्तेहाद ने अपने दोनों हाथ दीवार पे रखे थे और अमसाल उनके दरमियान कैद हो चुकी थी। जी अमसाल बोलते हुए अटकी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इत्तेहाद से क्यों इतना डर रही है। तुम्हें पता है मेरे घर वाले मेरे गुस्से से डरते हैं, उन सबकी कोशिश होती है कि मुझे गुस्सा ना आए। जानती हो क्यों? क्योंकि गुस्से में मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने हवासों में नहीं होता उस वक्त। इत्तेहाद को मिसाल की डरी हुई शक्ल देखकर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे मजीद डरा रहा था। इत्तेहाद चाहता था कि अमसाल के अंदर उसका डर हो। अब तो अमसाल को समझ ही ना आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, इसलिए खामोशी से खुद में ही सिमट के खड़ी थी। इत्तेहाद को अमसाल पे तरस आ रहा था, इसलिए मजीद तंग करने का प्लान तक कर चुका था। अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जो तुम इतना डर गई हो मुझसे। छुरी मारने पे कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हें, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और होता या होती तो बहुत अच्छे अंदाज में शिकार करता मैं उसका। इत्तेहाद बाज ना आया था, जबकि उसकी बात सुनकर अमसाल आंखों में हैरानी लिए उसे देख रही थी। मुझे ये डरी डरी सहमी हुई अमसाल नहीं, बल्कि अपनी पुरएतमाद अमसाल ज्यादा पसंद है। चलो अब नॉर्मल हो जाओ, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। इत्तेहाद हंसते हुए बोला था और अपनी पैंट की जेब में से एक मखमली खूबसूरत सी डिबिया निकाली थी। इत्तेहाद के नॉर्मल होते ही अमसाल ने भी खुद को संभाल लिया था और दोबारा से अपने गुस्से वाले मूड में आ गई थी। साथ ही वहां से निकलने लगी थी, लेकिन उसका बायां हाथ इत्तेहाद के शिकंजे में आ गया था। जिस काम के लिए आया था वो तो करने दो, कहकर इत्तेहाद अपने एक घुटने के बल अमसाल के सामने जमीन पे बैठा था और बहुत ही खूबसूरती से तराशी हुई हीरे की अंगूठी अमसाल की तीसरी उंगली में पहनाई थी। अमसाल के लिए सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। वो किसी किस्म का कोई रद्द अमल जाहिर नहीं कर पाई थी और इसी का फायदा उठाकर इत्तेहाद ने अंगूठी पहना दी थी। अमसाल हैरान और परेशान थी, कभी इत्तेहाद को देख रही थी, कभी अपनी उंगली में मौजूद खूबसूरत अंगूठी को। ऐसे क्या घूर रही हो? अंगूठी पसंद नहीं आई क्या? वैसे मेरा प्लान तो ये था कि तुम्हें लेकर जाता और बहुत ही रोमांटिक अंदाज में ये रिंग पहनाता, लेकिन फिर मुझे याद आया कि तुम तो मुझे किसी खातिर में ही नहीं लाती, इसलिए मजबूरन ऐसे ही पहनानी पड़ी। इत्तेहाद ने अपनी दुखी दास्तान सुनाई थी। जब अमसाल के हवास बहाल हुए तो वो अपनी उंगली से उंगली अंगूठी उतारने लगी थी, लेकिन अंगूठी भी इत्तेहाद की तरह ढीठ थी, जो उतर ही नहीं रही थी। ना ना, ये तुम्हारी उंगली से उतरी हुई ना देखूं मैं। मुझे पता था कि तुम इस किस्म की हरकत जरूर करोगी, इसीलिए छोटे साइज की रिंग बनाई थी मैंने, ताकि तुम चाह कर भी उसे उतार ना सको। पहनाने की भी ट्रिक थी, एक फिर कभी बताऊंगा। इत्तेहाद बहुत ही इत्मीनान से बोल रहा था और साथ ही अपनी अंगूठी पे हाथ फेर रहा था। हो गया आपका? अब प्लीज चले जाएं यहाँ से। अगर किसी को पता चला तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? अमसाल बेबसी से बोली थी।
अब न लहजे में गुस्सा था ना ही नफरत, बस बेबसी थी जो उसकी थकन का बता रही थी। वो थक गई थी इत्तेहाद से बहस कर करके। अच्छा जा रहा हूँ, ऐसे बेबसी से मुखातिब ना हुआ करो मुझसे, मुझे नए सिरे से तकलीफ होती है। और हाँ, कॉल उठा लिया करो मेरी, वरना यहीं आ जाया करूंगा तुम्हें देखने। इत्तेहाज ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा था। दिल तो चाह रहा था कि कोई शौक से गुस्ताखी करे, लेकिन अभी उसका ना तो हक था और ना ही वक्त, इसलिए जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया था। सुबह सवेरे का वक्त था, फजर की अजान हुई, कुछ वक्त गुजर चुका था और अब हल्की रोशनी आसमान पे फूटना शुरू हुई थी। हर सु ताजगी भरी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे में वो ब्लैक बनियान पे ब्लैक ही जैकेट और ट्राउजर में मलबूस था। पैरों में ब्लैक जोकर्स पहन रखे थे। जैकेट की आस्तीनों को कोहनियों तक मोड़ी हुई थी और उसमें से नजर आते सुर्ख सफेद मजबूत हाथों में काला बैंड पहन रखा था। कानों में एयरबड्स लगाए हुए थे। आसपास से बेनियाज वो तेजी से दौड़ रहा था। दौड़ने के बाद उसके घने गोल्डन ब्राउन बाल माथे पे गिर रहे थे, जिन्हें वो एक हाथ से बार बार ऊपर कर रहा था। खूबसूरती से तराशे हुए मगरूर नकूश वाला ये शख्स किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। कुछ वक्त गुजरने के बाद इत्तेहाद जॉगिंग से फारिग हुआ था और अब उसका रुख घर की जानिब था। बाएं हाथ से अपने बालों को टॉवल से साफ करते और दाएं हाथ से अपने पानी की बोतल से मुंह लगाए वो अपने रास्ते पे चल रहा था। ब्लैक ट्रैक सूट इत्तेहाज पे खूब जचता था। इत्तेहाज की छठी बहुत तेज थी और वो काफी देर से महसूस कर रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। चलते चलते इत्तेहाज अचानक से पलटा था जब उसकी नजर अपने से कुछ फासले पे मोहतात होकर चलती हुई दो लड़कियों पे पड़ी थी, जो इत्तेहाज के पलटने पे घबरा कर अपनी जगह रुक गई थी। इत्तेहाज को दोनों ही मशकूक लगी थी और वो इन्हें जांचती नजरों से देख रहा था। हाय, कैन आई गेट योर नंबर? दोनों में से एक लड़की ने हिम्मत करके पूछा था। इत्तेहाद दोनों को नागवारी से देखता हुआ पलट गया था और वापस अपने रास्ते पे चल पड़ा था, क्योंकि ये सब अक्सर औकात होता रहता था और अब वो इस सब का आदी हो चुका था। इत्तेहाद ने घर में दाखिल होते ही अपनी जैकेट उतार दी थी। उसके जहन से इस वक्त ये बात बिल्कुल निकल चुकी थी कि उसके कंधे पे पट्टी की हुई है। जैसे ही इत्तेहाद राहदारी से चलते हुए लाउंज में आया था तो वहां सोफे पे मौजूद जहांगीर साहब और जनरल बेगम और महराज बैठे हुए थे। या अल्लाह खैर, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? जन्नत बेगम की नजर जैसे ही इत्तेहाज के कंधे पे बंदी पट्टी पे तो गई तो वो फिक्रमंदी से कहते हुए इत्तेहाज की जानिब आई। क्या हो गया मामा? इत्तेहाज को कुछ समझ ना आया था, जबकि मीर जहांगीर और मेराज भी उसकी तरफ आ गए थे। कि तुम्हारे कंधे पे क्या हुआ है छोटे मीर? किसने नुकसान पहुंचाया है तुम्हें? मीर जहांगीर के पूछने पे इत्तेहाज ने अपनी गलती पे खुद को कोसा था, क्योंकि उसने जैकेट उतारी थी। इत्तेहाज अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता था। आपकी बहू ने, बेख्तियारी ही इत्तेहाज के मुंह से निकला था, लेकिन आवाज धीमी थी जिसकी वजह से किसी को समझ न आया। क्या कहा तुमने? जन्नत बेगम ने पूछा था। मैं कह रहा हूँ कि परेशान ना हो, ऐसी ही बस चोट लग गई थी रात को, किसी ने कुछ नहीं किया मुझे। आपको लगता है कि मुझे कोई कुछ कर सकता है? इत्तेहाज ने अपनी वालदा को तसल्ली दी थी। मेराज इत्तेहाज की पहली कही बात सुन चुका था और अब मुस्कुरा रहा था। अमसाल की शादी की तैयारियां चल रही थी जिसमें उसकी कोई भी दिलचस्पी न थी। वो बहुत बेदिली से अपनी मामा के साथ बाजार जाती थी और वहां भी बस खामोश ही रहती थी। जुबारिया बेगम को अपने हर वक्त चहकती हुई बेटी की खामोशी तकलीफ देती थी। उनको इस बात का बहुत मलाल था कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अमसाल जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा परेशान थी वो था अरहान को सब कुछ बताना। उसमें हिम्मत ही न थी अरहान को सामने करने की, इसीलिए वो उससे कोई राब्ता भी नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों, इत्तेहाज के इश्क जुनून की ये दास्तान अभी जारी है। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और कहानी को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि कहानी के अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।